My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today we are going to meditate from Isaiah chapter 62 verse 3. और आज के दिन हम यशायाह 62:3 वचन पर मनन करेंगे। It says like this, "You shall also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of your God." और इस वचन में इस तरह से कहा गया है, यहोवा के हाथ में एक शोभामयान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली राज मुकुट ठहरेगी। When we'll have these blessings? और कब हम इस अपने जीवन में इस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? When we become the children of God. जब हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। That too when we start doing the work of the Lord. और जब हम प्रभु के काम को करना शुरू करेंगे। When you give testimony glorifying the Lord. और जब आप परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए साक्षी देंगे। The Lord will be pleased with you. और परमेश्वर आपको देखकर प्रसन्न होंगे। And the Lord will anoint you and give you His crown. हाँ, प्रभु खुश होंगे, अभिषेक करेंगे और अपनी मुकुट को पहनाएंगे। It will be a holy crown. और ये एक पवित्र मुकुट होगा। What a great blessing it is, my precious children of God. मेरे प्रिय बच्चों, इस मुकुट को प्राप्त करना कितना आशीषमय है। If you read in the Bible from Leviticus chapter 8 verse 9, there we read that in the Old Testament that the people who are doing the ministry in the temple, they were wearing that crown. और पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 8:9 में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर की जो सेवकाई कर रहे थे, वो लोग इस पवित्र मुकुट को पहने हुए थे। It was a holy crown. और ये एक पवित्र मुकुट था। Yes, when we do God's work, we will be anointed like that. हाँ, जब हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, तब प्रभु हमको अभिषेक करेंगे। In the Bible we read that 2 Timothy chapter 4 verse 8, it says, "On the last day, the righteous judge will give me the crown of righteousness." और 2 तीमुथियुस 4:8 में पढ़ते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का जो मुकुट रखा हुआ है, जिस प्रभु न्याय प्रभु वो मुझको देंगे। My friends, when you do God's work, so many people will be criticizing you, telling you all sorts of wrong things against you. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जब आप प्रभु की सेवकाई करेंगे, तब अनेक लोग आपके विरुद्ध अनेक विषयों के बारे में बोलेंगे। But don't look to all those things. मेरे प्रिय दोस्तों, आप उसकी तरफ मत देखिएगा। Read the word of God. आप प्रभु के वचन को पढ़िएगा। How the Lord will honor you at the right time. और सही समय पर प्रभु आपको सम्मानित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। May be there for some time. हाँ, परेशानी कुछ समय के लिए होगा। Then the Lord will honor you. हाँ, फिर उसके बाद प्रभु आपको सम्मानित करेंगे। If you read 1 Peter chapter 5 verses 3 and 4, अगर आप 1 पतरस 5, 3 और 4 को पढ़ेंगे, when the chief shepherd appears during the last days, we will receive the crown of glory. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। Same thing we read in Isaiah chapter 62 verse 3 also. और यही चीज हम यशायाह 62:3 में भी पढ़ते हैं। So you have to arise and shine and do God's work. इसीलिए आपको उठ खड़े होकर प्रकाश में होकर आपको सेवकाई करना होगा। Isaiah 60 verse 1 says like this. और यशायाह 60:1 इस तरह से कहता है, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा जो प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Individually you do something for the Lord. और व्यक्तिगत रूप से आप प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कीजिएगा। As a family, unitedly you can do God's work and glorify the Lord. और परिवार के रूप में आप संयुक्त होकर परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सेवकाई कर सकते हैं। According to this promise, at the right time, God will give you a crown of glory. और इस वचन के अनुसार प्रभु आपको सही समय पर शोभायमान मुकुट देंगे। Let us humble ourselves and give our life in the hands of God. हाँ, आप अपने आप को नम्र कीजिएगा, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिएगा। Father, bless me whatever I do. हे प्रभु, मैं जो भी कार्य करूं उसको आशीषित Lead me in the कीजिएगा right way. और मुझे सही मार्ग में अगुवाई Let me कीजिएगा do your will. और आपकी इच्छा को पूरी That should be करो। your prayer. और यही आपकी प्रार्थना ही होना चाहिए। Even now, let us pray. आइए प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, और बहुमूल्य परम पिता, thank you, Lord, for all your goodness and mercy. और आपकी भलाई और करुणा के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for using me for your
glory. और आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। Bless all the children who are hearing this word of God. और इस वचन को जो परमेश्वर के संतान सुन रहे हर एक को आशीषित Especially कीजिएगा। bless all those who are working for the Lord. और विशेष रूप से जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं उनको आशीषित कीजिएगा। They may be going through many difficulty, हो सकता है कि जीवन में अनेक परेशानी से होकर गुजर रहे many होंगे criticism. और अनेक निंदाओं के बीच में, But Lord, you lay your hand and bless them and give them the crown of beauty. और परंतु आप उनको अपने हाथों से आशीषित कीजिएगा और आप शोभायमान मुकुट दीजिएगा। Whatever they do for you, let it be blessed, Father. हे प्रभु, वो जो कुछ भी करे हर एक कार्य को आशीषित कीजिएगा। Go before them and guide them and lead them. हे प्रभु, आप उनके आगे जाइएगा और उनकी अगुवाई कीजिएगा। In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन। Precious Sister Sonal Danibai, Christian, along with you, I wish your beloved son Derek Danibai a happy birthday. अति प्रिय बहन सोनल डैनी भाई क्रिश्चियन आपके साथ मिलकर के आपके प्रिय बेटे डेरेक डैनी भाई को कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो डेरेक। God bless you according to Isaiah 54 and verse 8. With everlasting kindness I'll have compassion on you, says the Lord. परमेश्वर आपको यशायाह 54 वचन 8 के अनुसार से आशीष दे, जहाँ वो कहता है, अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। Father, I pray for Derek. Give him a good job, salvation and divine protection. In the name of Jesus, let this grace come upon him, Daddy. Do it immediately, Lord, and make him so happy and glad and secure. पिताजी, मेरी प्रार्थना है डेरिक को आप एक अच्छी नौकरी दे, उद्धार प्रदान करें, ईश्वरीय सुरक्षा दे, यीशु के नाम में होने दे कि अनुग्रह उसके ऊपर में आ जाए। पिताजी, आप शीघ्र ही उसके लिए ऐसा करें और आप उसे महा आनंदित और सुरक्षित बनाए रखें। And bless Sister Sonal Danibai with divine health and all the debts disappear. Let her have peace in the name of Jesus. बहन सोनल डैनी भाई क्रिश्चियन को प्रभु जी आप ईश्वरीय स्वास्थ्य प्रदान करें और होने दें कि उनके सारे कर्ज जो हैं जल्द से जल्द प्रभु जी जाते रहें और यीशु के नाम में आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। Amen. God bless you.